विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहीं का रुख करेंगे। महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमने जैश ए मोहम्मद के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी संज्ञान लिया है। जैश ए मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है। हमने इस बात पर भी गौर किया है कि पाकिस्तान सरकार पठानकोट आतंकवादी हमले की छानबीन के लिए एक विशेष जांच दल भेजने पर विचार कर रही है। आतंकवादी हमले की छानबीन के लिए एक विशेष जांच दल भेजने पर विचार कर रही है। हम पाकिस्तानी विशेष जांच दल की भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा इस हमले के अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए हमारी जांच एजेंसियां सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी। विदेश सचिव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से आज बात की है। वे अपनी वार्ता को बहुत निकट भविष्य में पुनः निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। We welcome the statement issued by the government of Pakistan yesterday on the investigations into the Pathankot terrorist attack. The statement conveys that considerable progress has been made in the investigations being carried out against terrorist elements linked to the Pathankot incident. We note the apprehension of Jaish-e-Mohammed members. The action taken against Jaish-e-Mohammed is an important and positive first step. We also note that the government of Pakistan is considering to send a special investigation team to investigate the Pathankot terrorist attack. We look forward to the visit of the Pakistani SIT, and our investigative agencies will extend all necessary cooperation to bring the perpetrators of this attack to justice. Foreign Secretary spoke to his Pakistani counterpart today. They agreed to reschedule their talks in the very near future. That ends my announcement, and now I'm open for the question and answer session. Smita Sharma. Because what does India make of the Pak Foreign Ministry spokesperson's answer where he said we are not aware of detention or arrest of Jaish? Because, you know, if the government is not aware, it clearly means that he has not been detained of Maulana Masood Azhar. We do not have any information regarding the arrest of Maulana Masood Azhar. सर, हमारा सवाल ये है कि अगर सब कुछ अच्छा था, आप उनके एक्शन को भी वेलकम कर रहे हैं, तो फिर क्या कारण था कि ये टॉक आपको रीशेड्यूल करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, उसकी तो जरूरत यही होगी कि अभी दोनों साइड्स को लगा कि अभी कुछ और समय चाहिए है और तैयारी करनी जरूरी है, इसलिए। और दोनों, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी सहमति के साथ ये रीशेड्यूलिंग हुआ है। ये नहीं है कि हमने यूनिलैटरली कोई एक ऐसा कदम लिया है और पाकिस्तान उससे नाखुश है। ये दोनों विदेश सचिवों ने आपस में बातचीत की और आपसी सहमति के साथ ये फैसला लिया गया कि बहुत निकट भविष्य में इनको पुनः निर्धारित करेंगे। आंचल बोरा। Sir, if you can clarify, confirm or deny whether the two NSAs have met in the last few days? No, they have not. And no, sir, that was not my complete question. And sir, if will the NSAs be meeting before the foreign secretaries meet? We have no such information. Sir, are you going to make the detention or arrest of Maulana Masood Azhar a precondition for resumption of the foreign secretary level talks? It appears you have not noted my statement carefully. What did I say? We have welcomed the arrest of the Jaish-e-Mohammed members as an initial first positive step. The two foreign secretaries have spoken to each other and have agreed to reschedule their talks in the very near future. But my question was not on JE members, it was on Maulana Masood Azhar specifically. We have already, as you know, given actionable intelligence to Pakistan regarding all the people associated with this terrorist attack. We hope that Pakistan will continue with the investigations and bring all perpetrators to justice. आशीष। सर, इस बार जो फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात कल होनी थी, उसका मैंडेट था कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को किस लेयर्स में आगे बढ़ाना है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग फिलहाल होल्ड पर है? नहीं, बिल्कुल आप नहीं कह सकते, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग तो होल्ड पे तब होगा जब वो शुरू हो चुका होगा। अभी तो कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू ही नहीं हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू होने की प्रक्रिया
के लिए पाकिस्तान और भारत के विदेश सचिव मिलने जा रहे थे, और वो जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ेगी जब दोनों विदेश सचिवों नई किसी डेट के ऊपर तैयार हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों में इस बात पर सहमति है कि बहुत निकट भविष्य में वो वार्ता होगी। अखिलेश सर, जैसा कि आपने बोला कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस हैज बीन गिवन टू पाकिस्तान and we will see that whether words match with the deeds. So are you dissatisfied with the deeds that has been done? फिर लगता है आपने मेरा वक्तव्य ठीक से नहीं सुना। You are not satisfied. मैंने कहीं पे भी ये शब्द का प्रयोग किया है, मैंने उसको वेलकम किया है, मैंने उसके इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप कहा है, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन डिफर क्यों किया गया ये नहीं समझ में आ रहा है। पाकिस्तान को सबूत आपने दिया है, पाकिस्तान ने कहा है कि और उन्हें सबूत चाहिए, क्या भारत और सबूत देगा पाकिस्तान को? अगर जब हम उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को भी वेलकम करने को तैयार हैं तो हम जाहिर है कि और सबूत भी अगर हमारे हाथ में हैं ऐसे सबूत जो हम दे सकते हैं जिससे कि पाकिस्तान उस पर और अधिक एक्शन ले सकता है, तो हम क्यों नहीं देंगे। हाँ मनीष, क्या पठानकोट एयरबेस के अंदर भी उनको अलाउ किया जाएगा? नहीं, देखिए अभी तो सिर्फ पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम ऐसी टीम को भेजना चाहते हैं। हमने कहा है कि हम ऐसी टीम का स्वागत करेंगे। इसके बाद मोडालिटीज डिस्कस की जाएंगी कि वो टीम का मैंडेट क्या होगा, वो क्या देखेगी, क्या उसको दिखा सकते हैं हम लोग, उस पर बातचीत आगे बढ़ेगी। अभी उन्होंने एक इनिशियल ऑफर दिया है कि हम एक टीम भेजना चाहते हैं, हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। निधि, Have the NSAs spoken on the phone or do they plan to in the next few days? I can say that the NSAs have been in regular touch. Mukesh. Sir, where is the ball exactly now? Is it still in Pakistan court? Look, this is not a football. This is a diplomatic consultation between two countries which are neighbors, with which we want very cooperative relationship. Pakistan, the government of Pakistan has taken certain steps which I had mentioned in my first press conference on the 7th. We have welcomed those steps now. The two foreign secretaries are in touch, and the talks between the two foreign secretaries to discuss the modalities for the comprehensive bilateral dialogue will be rescheduled very soon. सर, क्या ये मान के चला जाए कि मसूद अजहर पर कार्रवाई जब हो जाएगी तभी भारत बातचीत के लिए तैयार? नहीं, मैं क्या बताऊं, मैं कितनी बार अपने आप को दोहराऊं, ये सवाल पहले भी आ चुका है। मैंने कब ऐसा कुछ कहा है? मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को कई तरह के तथ्य दिए हैं, सबूत दिए हुए हैं कि किन किन लोगों का इसमें, इस टेररिस्ट आतंकवादी हमले में उनका हाथ हो सकता है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान उन सभी लोगों, ग्रुप्स के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। शायद आपको फिर दोहराना पड़े, बेंचमार्क क्या है इंडिया की तरफ से? क्या कुछ ऐसा पाकिस्तान करे कि भारत ये मानेगा कि आपने सही एक्शन लिया है? भैया, मैं तो मान ही रहा हूं कि पाकिस्तान सही रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि मैं कितनी बार अपने स्टेटमेंट को दोहराऊं। मैंने कह दिया हम उसका स्वागत करते हैं जो उन्होंने कल स्टेटमेंट इशू किया है। जो जैश ए मोहम्मद के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसे हम सकारात्मक प्रथम कदम मानते हैं, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। वेंकट, for a change, can I change the subject? Please, can you tell us something about the Foreign Secretary's visit to Maldives and Sri Lanka? Vikas, thanks. Okay, I'm glad that we managed to change the topic at least. Foreign Secretary Dr. Jaishankar, as you know, was in Maldives on the 11th of January 2016 on a bilateral visit. During his visit, he called on the President of Maldives, His Excellency Dr. Abdullah Yamin Abdul Gayoom, the Foreign Minister, Her Excellency Mrs. Dunya Maimoon, and also held discussions with... तो आपको बता दें कि विकास स्वरूप यहां पर यह कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अब तक जो भी कदम उठाए हैं उसका स्वागत करता है भारत, और आपसी सहमति से सचिव स्तर की वार्ता को रद्द किया गया है और इस पर पुनर्विचार किया जाएगा कि कब ये वार्ता होनी है। विदेश सचिव स्तर की वार्ता 15 जनवरी यानी कि कल होनी थी, जिसे आज पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया कि रद्द कर दिया गया। यहाँ पर विकास स्वरूप भी वही बात दोहराते हैं, उन्होंने कहा कि जो जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई की गई है उसका भारत स्वागत करता है, और अगर SIT टीम यहाँ पर पाकिस्तान भेजना चाहती है तो उसे भी हम आगे ले जाएंगे और उसका भी स्वागत होगा। कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने Give the lady a chance. You've asked a question. Go ahead, ma'am. Wait for a mic. Sir, please give her the mic.
Sir, I just want to ask, when I ask from the people that who want to join